Good morning, student. This is your second lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. It's an autobiography of Nelson Mandela. So, there is a word used, apartheid. Apartheid is a political system that separates people according to their race. साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी यूज़ की गई थी। ये एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे लोगों को उनके रंग के उनके कलर के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट किया जाता था। तो जनरली इसमें वाइट और ब्लैक पीपल्स को अलग अलग रखा जाता था, उनमें कलर रेस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। So 10th May dawned bright and clear. For the first few days, I had been pleasantly beset by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders in South African soil. तो 10th मई का दिन था। डॉन मीन्स जब उजाला होता है, मतलब मॉर्निंग के टाइम, सवेरे के टाइम। तो 10th मई का दिन था और मॉर्निंग का टाइम था, क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बी साइज्ड बाय डिग्निटरीज। बी साइड मीन्स बी सीज्ड। बी सीज्ड मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। तो जो राइटर हैं उनको किसने सराउंड किया था, किसने घेरा था? Dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो वहाँ पे काफ़ी महान हस्ती आ रखे थे और उन्हीं के साथ पॉलिटिकल्स लीडर भी। किसको रिस्पेक्ट देने के लिए? वो एक इनॉग्रेशन उद्घाटन में आए थे, राइटर को रिस्पेक्ट देने के लिए। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये काफ़ी बड़ी सबसे लार्ज गैदरिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में। The ceremonies took place in the lovely sandstone. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non racial government. Amphitheatre. Amphitheatre means a building without a roof with many rows of seats rising in steps, typical of ancient Greece and Rome. तो अभी ये सेरेमनी कहाँ हो रही है? ये सेरेमनी हो रही है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और अभी तक ये फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी यहाँ की पॉलिटिकल में चेंज आया है। इससे पहले वाइट सुपरमेसी था, ज़्यादातर जो राइट्स थे वाइट्स को ही मिलते थे। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और यह पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक आई थी, जो कि कैसी थी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, जो रेस के अकॉर्डिंग कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर के साथ ऑटम में हैं। उनकी डॉटर का नाम है जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज द फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और पोडियम में, स्टेज में, मंच पर मिस्टर डे क्लार्क हैं जो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। और थाबो क्या है? फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट है। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said। और इसके बाद किसकी टर्न आती है? इसके बाद राइटर की टर्न आती है कि वो अपनी प्लेज लें। और वो क्या कहते हैं? I said, today all of us, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty, out of which the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long
must be born a society of which all humanity will be proud. तो अभी तक जो उनकी कंट्री में जो उन्होंने खुद नेल्सन मंडेला ने जो सफ़र किया है रेस डिस्क्रिमिनेशन, अब उससे काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल की है। इसीलिए वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें और कुछ ना हो, बल्कि क्या हो, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बल्कि ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा जाए, जिसमें हम सब प्राउड करें। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for the human dignity. We who were outlaws means it means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. तो ये जो अपार्थाइड थी पॉलिसी थी, कैसी पॉलिसी है जिसमें वाइट और ब्लैक को कलर के ऊपर उन्हें आइसोलेट करते थे, अलग अलग करते थे। तो ये जो पॉलिसी चलती आ रही थी, ये अब टूटी किस वजह से, जब ये न्यू डेमोक्रेटिक आई डिप्लोमेटिक रिलेशन ये टूट गए साउथ अफ्रीका में। Have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests. और इसके लिए इसके बाद जब इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो उन्होंने अचीव किया वो सफल हुए, तो अब जो उनके गेस्ट जो उनके इनाग्रेशन में आए हैं वो सब नेल्सन मंडेला उन सबको थैंक्स कह रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस की, जो उन सबको मिली है, फॉर पीस शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस उन पर थे उससे आज उन्हें आज़ादी मिल चुकी है, तो ये चीज़ उन्होंने अचीव कर लिया है थ्रू पॉलिटिकल। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Poverty, garibi, deprivation means state of not having one's rightful benefit. तो आज वाकई में अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला उन्हें पॉवर्टी से, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर और बाकी डिस्क्रिमिनेशन, अदर डिस्क्रिमिनेशन से आज जाके आज़ादी मिली है। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. और अब वो नहीं चाहते कि इस मिट्टी में, इस धरती में, इस कंट्री में कभी भी कोई इस तरीके का उत्पीड़न सहे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. आगे वो क्या कहते हैं कि द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट्स फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. Now, spectacular array means an impressive display and colorful and attractive. तो इस इस मौके पर साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, रोल कर रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, अलग अलग करतब दिखा रहे थे आसमान में। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड अ मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स ही नहीं थी, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्रीज की लॉयल्टी टुवर्ड्स इट्स डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री और अपनी गवर्नमेंट की तरफ। Only moment before, the highest general of the South African Defense
Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब जो वहाँ की पुलिस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके जिनके पॉकेट के ऊपर कई मेडल्स लगे, इट मीन्स उनकी रैंक अच्छी है, वो रेपुटेटेड है, वो भी उनके सामने सैल्यूट कर रहे हैं और प्लेज ले रहे हैं अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और इस चीज़ से बिल्कुल वो अवेयर थे कि कुछ सालों पहले उन्होंने उन्हें सल्यूट नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, अरेस्ट किया था. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और आगे वो कह रहे हैं chevron means a pattern in the shape of V. जो इम्बाला जेट्स है वो ऊपर आसमान में स्काई में वी शेप बना रहे हैं chevron, और अलग अलग स्मोक ट्रेल्स रिलीज कर रहे हैं. कैसे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. So that's all for today. We will continue tomorrow. Thank you.